Good morning. The first lecture of chemical kinetics, that is next chapter. Chemical kinetics is a physical chemistry, branch of physical chemistry which deals with the rate of chemical reaction and the various factors which affect chemical reaction, rate of chemical reaction, and also the mechanism, to some extent the mechanism of chemical reaction. That is called the chemical kinetics. So in this chapter is very important as per JEE and NEET point of view. So we will cover the main topics in this chapter that we are going to cover is the rate of reaction. It's very important. This is very important for JEE point of view. Then we will discuss the factors affecting the rate of chemical reaction. One factor we will discuss concentration, then temperature, then catalyst. On the basis of concentration, this is also very important. We will discuss the order of reaction. Question from this order of reaction, or you can say whole from factors. Questions are there in 2009, 10, 13, 16, 18. Continuously, every year one questions are coming from this factors. So JEE 2009, 10, 11, 13, 16 and 18. Continuously questions are coming. Order of reaction is very important. इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो करेंगे. उसमें जेई में क्वेश्चन आया था 11 में और 12 में कंटिन्यूसली 2 साल. 18 में भी था. आफ्टर दैट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अरेनियस इक्वेशन है इसमें. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम करेंगे, दैट इज अरेनियस इक्वेशन. Then next topic is rate law expression. Rate law expression. Then the difference between order and molecularity. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी. Then methods of determination of orders. Methods of determination of order experimentally. Okay. And थोड़ा सा टॉपिक इसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी है. तो ये टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर कवर होंगे. ओवरऑल दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो फैक्टर्स हैं जैसे कंसंट्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस पे बहुत ध्यान देना है. कंपटीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन. सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम. In simple word we can say that rate of reaction, this rate of reaction is defined as the change in concentration of reactant or product with time. Okay. So like we have a reactant to product. R is your reactant, P is your product. So when the reaction take place, the concentration of R that decreases with time and concentration of P that increases with time. So rate of reaction can be written as
increase in concentration of P by time, or it can be written as decrease in concentration of R with time. Simple. Concentration is taken as moles per liter, or if gases are there, then we will take it a pressure. Okay, so we can change the we can write here the change in concentration or pressure also. अगर हमारा reactants जो हैं और products जो हैं वो gaseous state में है, then we will not take the concentration, then we will take pressure. Okay, तो अगर हम concentration ले रहे हैं तो उसके यूनिट मोल्स पर लीटर होंगे. अगर हम प्रेशर ले रहे हैं तो उसके यूनिट जो है वो एटीएम में होंगे. तो प्रेशर भी ले सकते हैं, चेंज इन प्रेशर लिखेंगे फिर यहाँ पे. पी का प्रेशर बढ़ेगा विद टाइम, आर का प्रेशर कम होगा अगर गैसियस स्टेट में है तो. अदरवाइज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, किसी की भी चेंज हो जाए कंसंट्रेशन टाइम के साथ, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. Types of reaction on the basis of rate. On the basis of rate. So there are three types of reaction. Number one, very fast. These reactions are take place in a fraction of seconds. Generally, ionic reactions are very fast, in which there is no bond breaking, no bond making take place. For example, NaCl plus AgNO3 will give you AgCl NaNO3. This reaction is very fast. You can't find the rate of reaction of this reaction because this reaction takes place within even in a fraction of seconds. तो आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन नहीं कर सकते. इसकी ऐसी रिएक्शन की स्टडी के लिए स्पेशल अपरेटस होते हैं, हम ये नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में. दूसरा जो है हमारे पास, ये फास्ट क्यों है? बिकॉज इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता. ऑल आर इन द आयन फॉर्म, सब जो है वो आयनिक फॉर्म में पड़े हैं. तो जस्ट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, और यू कैन से इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जहां भी बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं पे ही रिएक्शन स्लो होगी. दूसरी जो रिएक्शन है विच रिक्वायर्ड ईयर्स टू कम, उसको बोलते हैं हम वेरी स्लो. वेरी स्लो. द रिएक्शन विच टुक ईयर्स, जैसे इसकी एग्जांपल आ जाएगी रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन जो है दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस. ये इतना स्लो है कि इसकी भी आप रेट ऑफ रिएक्शन इजीली डिटरमिन नहीं कर सकते. वेरी फास्ट उसकी भी नहीं हम कर सकते. अब तीसरे नंबर पे जो आती है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है मॉडरेट. मॉडरेट रिएक्शंस which take place in a finite time, which take finite time to take place. थोड़ा समय लेती हैं. ऐसी रिएक्शन की हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं. जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं N2H2 2 फ्रॉम अमोनिया. तो ऐसी रिएक्शन में क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज. N ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा. हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ये भी टूटेगा, है ना. और NH बॉन्ड जो है वो नया बनेगा. दिस इज अ न्यू बॉन्ड. तो bond cleavage and bond formation take place in the moderate reaction. So now in this chapter we will concentrate only upon the moderate reaction, because very fast and very slow reaction you can't determine their rate. Okay, so let's consider a reaction, say A to B. So when the time is 0, means initial, say its concentration is A naught, its concentration is 0. At time T, at some time after 10 minutes or 20 minutes or 15 minutes, its concentration become 80.
say its concentration increase, it's become Bt. Now if you say x moles of A that change to B, then what is AT? AT will be A naught minus X. And what will be Bt? Your Bt will be X. Okay. So rate of, अगर हम लिखते हैं rate of disappearance of A or rate of A, simply rate of A, or rate of consumption of A, all are equal. This will be equal to minus change in concentration of A. Delta means change in concentration. Square bracket means molar concentration A. Change in time T. This you can also write minus A T minus A naught divided by T. So this will be in the bracket. So concentrate on this only. Minus change in concentration of A by T. This is your rate of disappearance because A is going to disappear in the reaction. और simply is rate of A और simply the rate of consumption. कोई भी word use कर सकता है, इसका ये मीनिंग है. दूसरी ओर अगर हम लिखें rate of B, यहाँ इसको क्या लिखेंगे? Rate of appearance of B. B जो है वो appear हो रहा है. यहाँ लिखा होता है appearance की बजाय rate of formation of B. ये भी एक ही चीज है ना? This is a one thing. This is your for A. तो इसमें लिखेंगे हम because it's appearing concentration is increasing to put here plus sign. और अगर दूसरी फॉर्म में लिखना है तो आप लिखोगे प्लस Bt माइनस 0 बाई टी, बिकॉज इसकी Bt फाइनल थी 0, इसकी At माइनस ए थी. तो ऐसे हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तो जब भी आप किसी रिएक्शन के लिए ये लिखोगे इसका इक्वेशन, तो उसमें मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, से A plus B, C plus D. So what is rate of disappearance of A? This will be minus change in concentration of A by T. Rate of disappearance of B, again minus rate of appearance of C. Now we have a plus sign. Rate of appearance of D, again plus sign. So जो reactants हैं उनके आगे माइनस साइन, जो प्रोडक्ट है उनके आगे प्लस साइन. सिंपल. अगर हम लिखना चाहते हैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, dx by dt. अभी किया था रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन.
चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टी माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय टी प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय टी प्लस change in concentration of D by T. So negative sign indicates that concentration that decreases with time. So जो reactant है उनके आगे क्या आना है, माइनस साइन। ओके, तो अगर यूनिट ऑफ रेट देखा जाए, इस रेट के यूनिट ऑफ रेट, if we are taking the concentration in moles per liter, then unit of rate will be moles per liter per time। और अगर आपका टाइम सेकंड में है तो इट बिकम मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर गैसियस फेस है, गैसियस फेस में यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, चेंज इन प्रेशर होगा विथ टाइम, तो हम क्या लिखेंगे, एटीएम पर टाइम, या अगर सेकंड में है तो आपका एटीएम पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट। अब हम करेंगे नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। Relationship between rate of different species, reactant and products in chemical reaction। ध्यान से समझना। So suppose we have a reaction 2A change into 3B, 2 moles of A going to change into 3 moles of B. Okay. Now if we have a T0 initial, but if the concentration of A is A0 and B is 0. Now if time is T, at some time T, तो क्या लिखा था हमने, एक्स मोल्स ऑफ ए डीकम्पोज। तो अगर 1 मोल है तो एक्स मोल्स, अगर 2 आ गया उसके आगे तो क्या हो जाएगा, 2x मोल्स। इसका मतलब A0 माइनस 2x। x इज द नंबर ऑफ मोल्स विच डीकम्पोज। ए के डीकम्पोज होंगे और बी के बनेंगे। तो अगर x मोल्स है अगर उसके आगे 2 है तो क्या आ जाएगा, 2x। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी थी उसमें से 2x माइनस हो गया। उस साइड इनिशियल कंसंट्रेशन 0 थी, उसमें से 3x बन गया, बिकॉज इन द रिएक्शन, अब ध्यान से देखो तो 2 मोल ए के दैट्स गिविंग टू 3 मोल ऑफ बी। 2 मोल ऑफ ए कंज्यूम हो रहा है, 3 मोल ऑफ बी बन रहा है। अगर ए के 2x मोल कंज्यूम होंगे तो बी के 3x मोल्स बनेंगे। सिंपल है ना। नाउ वी विल राइट द रेट ऑफ ए। रेट ऑफ ए किसके इक्वल था, माइनस, अब मैं डी ले रहा हूं, डी का मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा की जगह पे डी ले लेंगे तो उसका मतलब है स्मॉल चेंज, इक्वल टू माइनस डी। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए दिस माइनस दिस। ओके, तो A0 माइनस 2x माइनस A0 किया था, पहले भी किया था ना। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, AT माइनस A0। AT क्या था, कंसंट्रेशन एट टाइम t, और A0 क्या था, कंसंट्रेशन एट टाइम 0। तो वही यहां पे किया। नीचे क्या आ जाएगा इसका dt। अब A0 कट जाएगा तो ये क्या हो गया, माइनस, ये 2 आगे आ गया, 2 dx by dt।
क्लियर? नेक्स्ट देखना, इसका प्लस आ जाएगा बिकॉज दिस माइनस इंटू प्लस। रेट ऑफ बी, बी का साइन प्लस है पहले, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, मैंने बोला मैं डी लिख रहा हूं डेल्टा की बजाय, बिकॉज डेल्टा का मतलब होता है बिग चेंज, डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, आगे हम करेंगे भी। तो व्हाट इज दिस डी बी, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी नाउ? 3x minus 0, 3x minus 0, तो 3x minus 0 नीचे क्या आ जाएगा dt प्लस है, ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई? प्लस 3 dx by dt। Now what is rate of reaction? Rate of reaction is dx on dt, ये किया था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो ये किसके इक्वल आएगा? दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, 2 आगे चला गया है ना, तो क्या लिखेंगे? -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ dx by dt, किसके इक्वल है? 3 आगे चला गया, आगे जाके नीचे चला जाएगा, तो +1/3 d कंसंट्रेशन चेंज b by dt। So this is your full equation. So now out of these, this is the rate of reaction, this is also rate of reaction. But if you want to calculate rate of disappearance of A, so your rate of disappearance of A is only this. This is your rate of disappearance of A. Similarly, rate of appearance of B is only this. Rate of appearance of B. If you want to calculate, if rate is given suppose and you want to calculate rate of disappearance of A, तो 2 उधर चला जाएगा, multiply by 2 you will get the rate of disappearance of A, because A की disappearance आप देखो डबल रेट से हो रही है 2A, उसके 2 मोल्स जा रहे हैं। ऐसे अगर आपको कोई इक्वेशन दी है, तो ये इक्वेशन जो जिसके लिए आपने ये लिखा, ये थी 2A चेंज इनटू 3B। अब देखो क्या लिखा है, dx by dt माइनस हाफ, जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बाय कर देना है, जैसे 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, रिएक्टेंट के आगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे प्लस। जैसे मान लो मैं ले रहा हूं 3a प्लस 2b 2 फॉर्म 4d, तो मैं कह रहा हूं रेट लिखो, तो अब रेट क्या लिखोगे? dx by dt माइनस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a by d, अगेन माइनस 1/2 change in concentration, then plus 1/4 change in concentration of B. So coefficient जो है वो 1 by क्यों हो जाएंगे, वो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। coefficient नीचे चले जाएंगे, जैसे 3 है तो 1/3 बन जाएगा, 2 है तो 1/2 बन जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी।